Dear students, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. It is class 11th political science and our fourth chapter is executive in a parliamentary system. तो जहाँ तक हम जानते हैं कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, और हर एक का अपना अपना काम होता है. लेजिस्लेचर मेक्स द लॉज, एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल for implementation of these laws and policies, and the judiciary interprets laws, protects civil rights, decides cases. It also works as custodian of fundamental rights, decides conflicts between center and state governments, and so on. तो जहाँ तक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ताल्लुक है, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which a party or a coalition of parties with the greatest representation in the legislature forms the government, and its leader becomes the prime minister. In India, the head of the government is prime minister, who is a real head, whereas the president is the nominal head. तो अब हमारा सवाल है यहाँ पर, व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव? Likewise, in an organization, there are some officers who make and implement decisions or policies on behalf of the organization. Each organization has some executives who are central decision makers, and some executives implement these decisions for day-to-day operation of these organizations. Thus, it is clear here that the executive is the branch of government which implements the laws and policies framed by legislature. लेजिस्लेचर कानून बनाता है, पॉलिसीज़ बनाता है गवर्नमेंट चलाने के लिए, और उन पॉलिसीज़ और उन कानून को मुल्क में इम्प्लीमेंट के लिए करने के लिए यही एग्जीक्यूटिव काम करता है. Sometimes the executive himself acts as policy makers with that of legislature. कभी कभार लेजिस्लेचर बॉडी जो होती है उनके साथ में एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है वो उनके साथ में काम करती है, और ये भी पॉलिसियां फ्रेम करते हैं. These executives are named differently in different countries. Likewise, president, king or chancellor or prime minister. तो बहुत से मुल्कों में इनको अपना अपना नाम दिया गया है. जो रियल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं इनको अपना अपना नाम दिया गया है. इन इंडिया, द एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. These are called political executives,
and they are responsible for overall government policies. The executive also includes civil servants or the administrators of different departments which are responsible for day-to-day operation and are called the permanent executives. ये जो political executives हैं और permanent executives हैं, इनमें फ़र्क है. Political executives president है, prime minister है या council of ministers हैं, इनके पास ज़्यादा पावर होता है. It is the ruling party, ruling government. और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं वो ऑफिसर्स होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के या सिविल सर्वेंट्स होते हैं. वो अपनी जगह पर ये पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं डे टू डे ऑपरेशंस में. जो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, these are elected by the people for a fixed period of time in the democratic system of government. While as the permanent executives remain in the offices permanently, even the ruling government changes. These executives work under the political executives and carry on the day-to-day operation in the administration. तो अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स क्या क्या है. On the basis of sharing of power between two or more heads, different countries have the executives of varying nature. मैंने पहले भी बताया है कि अलग अलग नाम दिए गए हैं अलग अलग कंट्रीज़ में. तो हम मिसाल लेंगे यहाँ पर. इन USA the president is the both head of the state and head of the government. That means president is the real head. In Canada, there is parliamentary system of government, and the PM is head of the government, Prime Minister. The Queen Elizabeth II functions as the head of the state. ब्रिटेन की मिसाल लेंगे हम तो यहाँ पर ब्रिटिश क्वीन जो है इट इज़ हेड ऑफ द स्टेट, while as the real executive authority lies with Council of Ministers headed by Prime Minister. In Japan, the monarch is the head of the state and the Prime Minister acts as head of the government. और अगर हम इंडिया की मिसाल लेंगे, यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है ये हेड ऑफ द स्टेट है एंड प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है. और सारा काम यहाँ पर सारी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर पर ही आयद होती है. तो इन इंस्टेंसेस को जब हम व्यू करते हैं, यहाँ पर हमें 3 किस्म के एग्जीक्यूटिव्स नज़र आ रहे हैं. 3 types of executives. The first is presidential system. In presidential system of executive,
President is the head of the state and head of the government. और प्रेसिडेंट जो ऑफिस होता है, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑफिस इन द कंट्री। मिसाल यहाँ पर है यूएसए की या ब्राज़ील की। तो दूसरा टाइप है पार्लियामेंट्री सिस्टम। इस सिस्टम में यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, ये सिर्फ सेरेमोनियल फंक्शंस परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पर इंडियन प्रेसिडेंट, और रियल हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। बरतानिया इसकी दूसरी मिसाल है, या जर्मनी है इसकी मिसाल। यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो ओनली सेरेमोनियल फंक्शंस परफॉर्म करता है। दैट मीन्स दे आर नॉमिनल हेड्स, while as the prime minister is the real head of the state। तो तीसरा टाइप जो है ये सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इन दिस सिस्टम both a president and a prime minister, but unlike the parliamentary system, the president wields some significant powers। यहाँ पर दोनों प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों शेयर करते हैं, मगर प्रेसिडेंट के पास कुछ ज़्यादा इख्तियारात होते हैं। तो दूसरा पॉइंट है प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर मे समटाइम्स बी फ्रॉम द सेम पार्टी and at times may belong to different parties and may oppose each other। तो कभी कभी उनके पास तो पावर है दोनों के पास, कभी कभार तो ये एक ही पार्टी के होते हैं तो एक ही डिसीजन भी ले सकते हैं। तो कभी कभी ये जब अपोजिट पार्टीज़ के होते हैं तो अपोजिशन में भी आ सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर फ्रांस की मिसाल लेंगे हम, या श्रीलंका की, या रशिया की। तो ऐसे हमें मालूम होता है कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है, क्या काम परफॉर्म करता है, और डिफरेंट सिस्टम जो गवर्नमेंट के होते हैं वहाँ पर एग्जीक्यूटिव कौन होता है और किस तरह से रेस्पॉन्सिबल होता है और कौन से काम वो परफॉर्म करता है। तो इस तरह से हमें खासकर इंडिया का पता चला कि यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पर रियल हेड होता है प्राइम मिनिस्टर और नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट। तो अब हम एक क्वेश्चन लेंगे बहैसियत होम असाइनमेंट। क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एन एग्जीक्यूटिव and what are the various types of executives? That is all. Okay.